Assalamu alaikum dear student. As you know that we start chapter number 3, that is dynamics. And dynamics, in previous lecture we study about force and cause of force and how the force produce motion, and we discuss type of motion, that is contact force and non-contact force. Now we study Newton's laws of motion, because motion are produced because of cause is force. And so Newton proposed the theory of causes of motion, और उसको collectively उसने कहा Newton laws of motion, because Newton generalized the Galileo ideas and on the falling object of motion of falling object, and how the object falling, how the object moving. So he formulated 3 laws of motion, that is called Newton laws of motion. सर आइजैक न्यूटन 1642 में पैदा हुए और 1727 में उसकी डेथ हुई, और उसने थ्योरी ऑफ काजेज ऑफ मोशन, काजेज वजूहात मोशन की वजह से एक थ्योरी बनाई, और कलेक्टिवली उसने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का नाम दे दिया, और उसने बेस प्रोवाइड किया इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट के बाकायदा हमारे पास बुनियाद बरा फराम किए असरात, फोर्स के असरात की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में जब फोर्स एग्जर्ट होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में मोशन पैदा होगी, तो वो हमारे पास जो है उसका इफ़ेक्ट है ऑन एन ऑब्जेक्ट, और दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन लॉज ऑफ motion. And these laws are still valid and can be successfully applied to classical bodies. Having classical bodies वो है हमारे पास जिसकी masses बहुत ज़्यादा हो और velocity छोटी, यानी slow हो, कम हो, low velocities हो, but these laws are fairly very small masses and high velocities like electrons, protons, etc. These laws are still valid to classical mechanics. So now first of all we study first law of motion, that what Newton say in first law of motion. What is the basic definition of Newton's first law of motion? That a body, Newton says that, and this law states that an object at rest remain at rest, or a body in motion will continue its motion in straight line with uniform velocity or constant velocity. न्यूटन ने अपनी पहले कानून में ये कहा, हमारे पास लॉ में कहा कि एक बॉडी रेस्ट में होगी तो वो हमेशा रेस्ट में होगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी किसी ख़ास यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, स्ट्रेट लाइन मोशन वो करेगी. लेकिन अनलेस इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, लेकिन कंडीशन उसने क्या बताया हमारे फर्स्ट लॉ में कि हमारे पास क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्टिंग कर रहा है वो क्या हो, ज़ीरो हो. Unless up to that certain if there is no external force, then in that condition body will remain at rest and a body will remain in motion, straight line uniform motion. This first law consists 2 parts. One is the first part has rest, and because in this Newton first law Newton discussed 2 things, rest and motion. So we can say that this has 2 parts, rest and motion. Mathematically, if there is no external net force, if net force are exerting on object, खुद देख ले अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो नेट फोर्स अगर ज़ीरो होगा, तो जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, नो एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ वी शुड डिस्कस इन डिटेल. अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी किस तरह. It is not our common observation, not against our common observation, but the second part is against our common observation. Now first of all we discuss rest. अगर आप देख ले, अगर की कोई चीज़ आप चेयर, lying in the room, या और बुक हो, remain on the table, बुक ले ले आप कॉमन ऑब्जर्वेशन देख लें अपनी, कि आप अगर क्लास में आए, छुट्टी के टाइम जाते हो तो आप चेयर्स को छोड़ देते हो क्लास ही में, जब सुबह आते हो वही चेयर वही उसी जगह पड़ी रहती है, कोई और जगह उसने तब्दील नहीं की होती, मीन्स दे आर इन रेस्ट. इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय हर सेल्फ. वो चीज़ अपनी जगह खुद तब्दील नहीं कर सकता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना आ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कंसिडर करूँ, एक ये टेबल ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कंसिडर अ टेबल, और इस टेबल पे मैं बुक रख दूँ, ये बुक हमेशा इसी टेबल पे होगा. अगर 2 दिन आप अपनी स्टडी रूम में देख ले, जब तक आप अपने बुक्स हटाते नहीं कोई उसको हाथ नहीं लगाता.
और वो अगर उसकी पोजीशन अगर आप अपनी बुक से किसी टेबल पे किसी जगह रख दे और आगे फिर आप 2 दिन बाद देख लें वो वहाँ मौजूद ना हो, तो आप पूछते कि मेरे बुक्स किसने अपनी जगह से हटाए हैं, तो घर में कोई आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप उसी जगह बुक्स रख दे और 2 दिन बाद आ जाएंगे तो बुक्स वही पड़े रहेंगे। मतलब एक चीज़ उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी, हमेशा रेस्ट में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स आ ना आए और उस पर फोर्स एग्जर्ट ना करे। उसको अगर ये बुक इधर ही पड़ी है तो इधर ही रहेगी, जब तक मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, उसको डिस्प्लेस ना कर दूँ किसी दूसरी जगह। तो फर्स्ट पास तो हमारे पास नॉट अगेन आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। आप जगह घर में कोई चीज़ रख दे, भूल जाते हो, बस 2 दिन बाद फिर बाद में याद आ जाता है तो वो चीज़ वही पड़ी रहती होती, तो हमेशा वो रेस्ट में रहेगी। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय herself अप टू if there is no external force acting on that object. And the second thing is the motion part, but it is our common observation. If you apply force on a rolling ball on the ground, if you consider if you apply force on this object, then this ball will start motion. After certain distance, the ball stops. But you are considering, if you consider, if you are in the first line mind, that Newton says that if a body in motion will continue its motion with uniform velocity, constant velocity in straight line, तो यहाँ तो वहाँ कुछ वो कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि बॉडी मोशन में कंटिन्यू करेगा मोशन और स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। लेकिन यहाँ हम आपने फोर्स अप्लाई की, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो फुटबॉल जो है थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। ये तो अगेन हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन के अलावा, लेकिन उसने कंडीशन क्या बताया न्यूटन, कंडीशन ये है उस वक्त तक वो मोशन में कंटिन्यू मोशन रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो, अनलेस इफ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। उसने शर्त भी रखी है कि हमारे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वो बॉडी कंटिन्यू करेगी मोशन। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या एक्सटर्नल फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है। इफ़ वी निगलेक्ट these all forces, remove all these forces, then the ball will continue its motion. इसी बॉल को हम अगर ले जाए स्पेस में, और स्पेस में there is no force, so you can continue your motion. If I say if we remove friction force, gravitational force from the earth surface, then what you consider? जिस तरह बैलून उड़ता रहता है ना, ये कभी उधर कभी इधर, तो उसी तरह इंसान भी उड़ेगा स्पेस में, क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, स्टॉप करने वाले नहीं। यहाँ तो स्टॉप करने वाले हैं। उसने कहा कि न्यूटन ने कहा कि इस फोर्सेस को हम क्या करेंगे, उस वक्त तक ये कंटिन्यू मोशन करेगी जब तक उस पर क्या हो, एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो। इस तरह आप देख ले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस तरह आप कार मूविंग ऑन द रोड, तो उसमें कार पे 2 फोर्सेस एक्सर्ट, एक तो इंजन फोर्स है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट उसको पुल कर रहा है, फॉरवर्ड पुल कर रहा है। दूसरा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है जो अर्थ प्रोवाइड कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तीसरा हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, वेट है उसका गाड़ी के, वो डाउनवर्ड है। एक नॉर्मल फोर्स है जो अर्थ सरफेस दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और कैंसिल कर इफेक्ट हो रही है, गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन के साथ वेलोसिटी के साथ जा रही। तो दिस इज़ अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब रेजिस्टिव फोर्स है हमारे पास कि ये रेजिस्टेंस फराहम कर रहा है, हमारे पास अपोजिशन फराहम कर। जिस तरह हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स है, जिस तरह रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर चुके हैं। और इफ़ वी डजंट डिस्कस रेजिस्टेंस, द अपोजिट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हमारे पास। So inertia is the ability, or we can also define inertia. एक तो हमारे पास inertia क्या है, the property of body due to which it opposes any change in state of rest or motion। कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, कि वो रेजिस्टेंट यानी अपोजिट मुखालिफ में उसकी हालत के स्टेट यानी वो रेस्ट में है तो उसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फराहम करता है। रेस्ट में वो क्या कर देता है, मोशन में चेंज कर देता है। और अगर मोशन में है तो वो क्या कर रहा है, उसको रेस्ट में चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेजिस्टिव फोर्स है, या एबिलिटी ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ विच इट वांट टू मेंटेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या ऐसी एबिलिटी किसी बॉडी की कि वो मेंटेन अपने आप को बरकरार, अपनी रेस्ट हालत को बरकरार रखना चाहता है या मोशन की हालत को बरकरार रखना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं।
on all our bodies want to maintain a state of rest with different resistance, क्योंकि जितनी भी हमारे पास जितनी भी बॉडीज़ इफ़ यू कंसिडर डिफरेंट बॉडीज़ और वो अपनी हालत को बरकरार रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहता है, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी फॉर दैट चेंज। और फॉर बिगर बॉडी मासेस दिस अपोजिशन विल बी मैक्सिमम। जितनी हमारे पास बड़ी बॉडी होगी उसके लिए हमारे पास क्या है, इनर्शिया ज़्यादा होगा। मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। जितना हमारे पास मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना ही हमारे पास इनर्शिया भी वो भी कम होगा। जिस तरह आप इनर्शिया की बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास जो है, जिस तरह आप किसी वो को आप अक्सर देखते हैं ना कि हमारे पास बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कोई फल का हमारे पास फ्रूट का दरख्त होता है तो उसकी शाखों को हिला देते हैं। जब उसकी शाखों को आप हिलाते हो तो फ्रूट गिर जाते हैं। ये किस प्रॉपर्टीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्योंकि अगर आप उस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस आप फ़र्ज़ करें दरख्त ले ले आप, हिस्ट्री, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ वो होते हैं, शाखें होती हैं। अगर आप ट्री को शेक करेंगे, यहाँ फ्रूट लगे होते हैं, तो आपने तो इसकी जो ब्रांचेज है ये मोशन स्टार्ट कर लेती है, लेकिन जो इसमें फ्रूट्स है वो अपनी हालत को क्या करता है, रेस्ट में रखना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टीज़ है, हमारे प्रॉपर्टी है जो क्या है, रेजिस्टेंस फराम करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में। जिस तरह आप कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, जिस तरह आप बस में वो हो जा रहे हो, या बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड, या और स्टार्ट सडनली, अगर मोशन एकदम स्टार्ट कर ले तो वो क्या कर देता है, बैकवर्ड जाता है हमारे पास। ये क्यों? क्योंकि अगर आप देख ले, अगर आप एकदम से अगर बस स्टार्ट कर देता है तो आप पीछे जाते हो। ये क्यों? क्योंकि आपका लोअर पार्ट जो है हमारे पास इन कांटेक्ट वो रहता है बस के फ्रेम के साथ, तो वो हमारे पास क्या कर देता है, मोशन में रहता है। अपर पार्ट रेस्ट में रहता है और अपने आप को रेस्ट में रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो इनर्शिया की वजह से वो क्या मोशन में आ जाता है। जिस तरह मैंने कहा जर्किंग द ब्रांच ऑफ ट्रीज फ्रूट फॉल डाउन, ये भी हमारे पास है। दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन इनटू फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द सेकंड लॉ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन। व्हाट द न्यूटन says in second law, if you consider any object, this object starts motion, और हाउ दे स्टार्ट मोशन इफ़ यू एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स की वजह से इसने मोशन स्टार्ट कर दी, और मोशन की वजह से इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक पॉइंट से इस पॉइंट से गया इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ये सब किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ में ये कहा कि अगर नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जो फोर्स अप्लाई करेंगे हमारे पास, तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि हम एक ऑब्जेक्ट ले लें मास, उस पर फोर्स अप्लाई करें तो मोशन स्टार्ट करेगा, और उस मोशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो हमने कहा क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन की बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या है, दैट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब फोर्स अप्लाई करेंगे मोशन स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, जो वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास क्या इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ में उसने अपने ये कहा कि हमारे पास अगर हम नेट फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। मतलब जितना हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। और फिर उसने कहा हमारे पास ये तो स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले, अगर एक बच्चा है उसने 1 kg बाल लिया है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है, और दूसरा बड़ा बच्चा है उसने भी 1 kg वही सेम ऑब्जेक्ट लिया, मास दोनों का सेम है। अब आपके ख्याल में ये फोर्स अप्लाई करेगा तो इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसके लिए इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, फोर्स नहीं, और अगर ये बड़ा बंदा फोर्स अप्लाई करे तो इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बाल में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? इस बच्चे ने फोर्स कम अप्लाई किया है तो इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इस बच्चे ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
फॉर एग्जांपल जितना हम ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो उसने न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा कि हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इसी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अप्लाइड फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मास ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि हम एक चीज़ को इंक्रीज करें दूसरा भी इंक्रीज हो, इनवर्सली प्रोपोर्शन कि एक इंक्रीज करे दूसरा डिक्रीज होगा। तो अगर इसी न्यूटन के सेकंड लॉ को की स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, उसने मैथमेटिकल फॉर्म दिया कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड फोर्स, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड नेट फोर्स, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ and inversely proportional to mass of the A is inversely proportional to 1 by m. If you combine these two equations mathematically, so A is directly proportional to F by m. If we हमेशा जब हम प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करते इक्वलिटी में तो हम एक कांस्टेंट लगाते एंड दैट इज़ के कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, हम के लगाते इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल इसकी वैल्यू चूज़ की गई कि के की वैल्यू 1 के बराबर है। तो अगर इसमें हम 1 डाल दें तो ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम, तो एफ इज इक्वल टू एम। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास how k is equal to 1, we can also prove this if from this equation if we eliminate k from this equation, तो m को डिवाइड करो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो m इधर आ जाएगा और f को फिर डिवाइड करें तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें पता है कि मास को हम kg में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर बाय सेकंड स्क्वायर में, फोर्स को हम न्यूटन में, तो kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, और kg मीटर बाय सेकंड स्क्वायर हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किसके बराबर, न्यूटन के बराबर। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल मास को ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। आप ले लेना एक हल्की चीज़, आप एक शॉपर ले ले उसमें 2 kg वज़न है तो वो उसमें आप आसानी उसके साथ उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें 10 kg है तो आप बहुत मुश्किल से लेके जाएंगे। मास ज़्यादा होगा तो आपकी एक्सेलरेशन भी कम होगी। So this is all about Newton second law of motion. Now we should discuss the Newton third law of motion. Okay, third law because I told you they represent 3 laws of motion. Then the third law is basically in continuously used in our daily life. Newton third law of motion. What Newton third law state that to every action there is always equal and opposite reaction. कि हर एक अमल का, आपने उर्दू में जाना होगा अक्सर मुहावरा है, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने कहा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा जोड़ों में हमारे पास वो अप्लाई करें। एक्शन रिएक्शन न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। Action and reaction will opposite in direction, never be equal in magnitude but opposite in direction. कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, रिएक्शन लाजमन होगा। अगर आपको टीचर मार रहा है, पनिशमेंट दे रहे, तो आपकी रिएक्शन में गुस्सा होगा, रिएक्शन में गुस्सा आएगा, लेकिन टीचर पे तो नहीं निकाल सकते आप पे, तो लेकिन शो करेंगे अपना रिएक्शन में गुस्सा शो करेंगे। हर चीज़ का हमारे पास रिएक्शन होता है, लाजमन है। तो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर पेयर, न्यूटन ने कहा कि पेयर में होंगे, और एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन अकर ऑन वन बॉडी, एक्ट ऑन वन बॉडी, रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। सो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। डज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट एक्सर्ट ऑन अ सेम बॉडी, डज नॉट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। बंदा अपने आप को मार रहा है तो दूसरे बंदे को तो एहसास नहीं हो रहा कि वो कितना उसको दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा। जब एक बंदा एक को मार रहा है, दूसरा दूसरे को मार रहा है, सो दे फील द रिएक्शन ऑफ ईच अदर। सो वी कॉल इट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब फोर्स एक ऑब्जेक्ट, फ़र्ज़ करें हमारे F12 फोर्स को कहते हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और F21 का मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सर्ट कर रहा है। और नेगेटिव साइन शो दैट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखिए कि हमेशा हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दिस इज ऑल्सो understood, you should understood. An action reaction always I told you equal in magnitude but opposite in direction, can never balance each other because they are acting on different bodies. For example, if you consider a ball, if you consider this is the ball, now if you apply force, so the ball goes start motion, so the ball exert force on this wall, इस वॉल पे बॉल क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। F हमारे पास if you consider F1 to 1 2 force are exerted by
फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, इस तरह भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसने तो फोर्स एक्सर्ट कर लिया है, अब रिएक्शन में क्या करेगा, वॉल भी इस बॉल पे क्या करेगा, फोर्स कर एक्सर्ट करेगा। सो द वॉल आल्सो एक्सर्टिंग द फोर्स। जितना आप कम फोर्स, जितना आप तेज़ी से बॉल को दीवार के साथ वो करेंगे, दीवार की तरफ फेंकेंगे, तो दीवार भी उतनी उसके साथ फोर्स के साथ आपके बॉल आपके पास आएगा। सो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर. You are walking on earth surface also because of phenomena of action and reaction. If you walk on earth surface, if you consider this is a person, this is the ground, now how you will be able to walk on that surface. So in Newton third law, because I told you these laws are valid up to now from according to classical mechanics, heavy masses, low velocities. Now if the person is walking on the earth surface, so the person exert the earth in backward direction, so the earth his foot exerting action, and the earth surface as apply force in forward direction, that is reaction. Through action reaction we are able to walk on the earth surface. Or for example, if book lying on a table, there are two forces acting. One is weight is acting downward, normal force is acting upward, both are in opposite direction. This is also action reaction. If you are exerting a force on anything, this is called what? In this case, you are exerting forces, external forces action, and friction force. Yeah, earth surface will provide the friction force, that is reaction. So there are a lot of example of action and reaction which are able in we use in daily life. So these all about the things are Newton's laws of motion. Now in next chapter, inshallah, we discuss the momentum. What is momentum? How momentum is related with force, and other things we should discuss. Thank you so much.